Welcome to students. This lecture is based on life processes and we are discussing actually the topic called life processes in living organism part 1. Okay, and here we have to discuss different major life processes. We know very well that nervous system, excretory system, circulatory system, digestive system, okay, all these systems are important for normal survival of humans and other animals as well. So all the animals are characterized by these major systems in the body, right? For instance, we can take example of circulatory system. So whatever we consume as a food is digested properly with the help of digestive system, especially through intestine, and important essential nutrients get absorbed by intestine and added to the blood. Then blood, with the help of circulatory system, of course, it transported nutrients to the target called each and every cell of the body. Okay, in a body there are about more than, we can say, 100 trillion cells. So that much cells we have, and to transport we need a typical system called transport system or circulatory system, which include blood vessels, and of course pumping organ of the body called heart, right? So ultimately nutrients reaches to the target called cell, and when nutrients are enter into the cell, then there is need of oxygen as well. Okay, so nutrients like, we can say, carbohydrate, example glucose. Okay, when glucose reach to the cell, it also need oxygen, that also transported similarly by blood, okay, by circulatory system, and with the help of glucose, with the help of oxygen, we generate our potential, that is ATP or energy, we can say. Okay, so as energy is produced in cell with the help of mitochondria are called powerhouses, and similarly that process in which we get energy or ATP is nothing but respiration. Okay, so we have respiration to reproduce or regenerate, we can say, energy intracellularly, and there is external respiration as well. Okay, we will discuss it later on, little bit later on. Okay, but we have different systems which are nothing but associated, we can say, with life processes. लाइफ प्रोसेसेस, ये बहुत सारे प्रोसेस ऐसे हैं बॉडी में जिनके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसका नाम रखा गया है लाइफ प्रोसेस. सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ऑल दीज आर व्हाट, लाइफ प्रोसेसेस, ऑफ कोर्स. ठीक है ना. तो इसमें जो न्यूट्रिएंट्स का हमें ज़रूरत पड़ता है उसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑफ कोर्स, बट हम बात करते हैं थोड़ी कार्बोहाइड्रेट के बारे में, स्पेशली फर्स्ट वन इम्पॉर्टेंट, कार्बोहाइड्रेट. ओके, सो कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमें डिफरेंट फॉर्म में मिल जाता है, जो हमारे डाइट में रहते हैं फूड स्टफ्स, उससे हमें मिलेगा, ऑफ कोर्स. ठीक है, कुछ सोर्सेस हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, राइट. जैसे कि मिल्क है, मिल्क, राइट. फ्रूट्स, डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स है, एक जैगरी हो सकता है, ठीक है, या फिर आप केन शुगर ले सकते हो. सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट वी आर डिस्कसिंग हियर. डिफरेंट वेजिटेबल्स, राइट, पोटैटोज, या फिर स्वीट पोटैटोज आप ले सकते हो, स्वीट पोटैटो एज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. डिफरेंट सीरियल्स में भी देयर, इंक्लूडिंग जैसे कि आप ले सकते हो यहाँ पे व्हीट, ओके, जवार, रगी, राइट, बाजरा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो, राइट. मिलेट्स, वी कैन से. तो ये जो सारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस हैं, इससे हमें मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, राइट. और कार्बोहाइड्रेट का बेस्ट एग्जाम्पल सिंपल मोनोसैकेराइड ग्लूकोज, ठीक है ना, ये सबसे मिलेगा. तो जब हम लेते हैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तो हमें मिलता है अबाउट 4 किलो कैलोरी एनर्जी, ठीक है ना. सो दिस पर्टिकुलर थिंग यू शुड रिमेंबर दैट वी गेट एनर्जी 4 किलो कैलोरी फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, तो जब कभी हमें इतना एनर्जी चाहिए होगा तो हमें दैट मच अमाउंट कार्बोहाइड्रेट का लेना पड़ेगा. प्रोटीन्स का भी अगर 1 ग्राम लिया जाए तो उससे हमें सिमिलर क्वांटिटी में क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा. हाँ, अगर आप फैट लेते हो 1 ग्राम तो उससे आपको 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिल जाएगा. ठीक है, इसका मतलब फैट से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलता है कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन. बट यहाँ पे अगर आप देखो कार्बोहाइड्रेट, एग्जाम्पल ग्लूकोज, जो कि हमारा सबसे कॉमन सबस्ट्रेट होता है टू जनरेट ATP or to produce energy inside the body, inside the cell by the process
कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, रेस्पिरेशन पहले और उसके बाद आप देख सकते हो जब हम एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं तो उस एनर्जी का यूज़ हम डिफरेंट प्रोसेस के लिए करते हैं, जैसे कि लोकोमोशन, मूवमेंट्स एंड डिफरेंट एक्टिविटीज़, ठीक है ना, जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं। इन सारे एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें चाहिए होता है सोर्स ऑफ एनर्जी एंड देन एनर्जी ऑफ कोर्स। तो एनर्जी हमें मिल जाती है, राइट, लेकिन उसके लिए खास प्रोसेस एसेंशियल है जिसका नाम है रेस्पिरेशन। तो ये जो रेस्पिरेशन होता है ये होता कहाँ पे है, किस फॉर्मेट में होता है, ये हमें डिटेल पढ़ना है इस टॉपिक में, इसको देखेंगे। कुछ क्वेश्चन किए गए आपके टेक्स्ट बुक में, ओके, उसके पहले आंसर कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन किया गया है कि प्लेयर्स बीच बीच में ब्रेक में स्पेशली कुछ फ्रूट्स वगैरह कंज्यूम करते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स वो कंज्यूम करते हैं। सो व्हाट शुड बी द रीज़न बिहाइंड दैट इनटेक ऑफ फ्रूट्स पीरियडिकली इन वी कैन से ब्रेक्स, बीच बीच में ऐसे ब्रेक होते हैं, राइट, और उन ब्रेक्स में प्लेयर्स ये कंज्यूम करते हैं फूड स्टॉप्स या फिर फ्रूट्स वगैरह या एनर्जी ड्रिंक्स। तो इसका क्या पर्पस हो सकता है, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। प्लेयर्स का एक्टिविटी नॉर्मल पर्सन से उस वक्त ज़्यादा है ड्यूरिंग प्ले, ठीक है ना। तो जैसे हम एक्सरसाइज करते वक्त थोड़े टायर्ड फील कर सकते हैं और हमें हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट ये सब बढ़ाने का ज़रूरत पड़ सकता है, ठीक है ना। उसी तरह आप देखिए कि जो प्लेयर्स है वो एक्टिवली पार्टिसिपेटेड है, उनका रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेट ऑफ डाइजेशन, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, रेट ऑफ एक्सक्रीशन, पर्सपिरेशन ये सब बढ़ा हुआ है। वाटर लॉस उनके बॉडी से ज़्यादा हो रहा है और बॉडी का कंजम्पशन रेट काफ़ी स्ट्रांग है। तो इस केस में उनका जो न्यूट्रिएंट का कंजम्पशन है वो बहुत स्ट्रांग है, ऑक्सीजन का यूज़ ज़्यादा है, ओके, वाटर लॉस ज़्यादा है बॉडी से, तो इसीलिए उन्हें ज़रूरत पड़ता है वाटर का भी और एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट का भी, ओके। रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म बढ़ गया है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ गया उस वक्त। दैट्स हाउ टू कंपेंसेट ऑल सच लॉसेस दे हैव टू कंज्यूम एनर्जी ड्रिंक्स और वी कैन से फ्रूट्स एज वेल, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं और कार्बोहाइड्रेट से क्या होगा, एक सोर्स मिलेगा टू जनरेट एनर्जी और ATP बाय रेस्पिरेशन, ठीक है ना। तो इसलिए प्लेयर्स बीच बीच में ब्रेक के वक्त ऐसा कंजम्पशन कर सकते हैं, ऑफ कोर्स। सो फर्स्ट टाइटल फ्रॉम दिस टॉपिक वी हैव टू अंडरस्टैंड इज द एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग प्रोसेस दैट इज रेस्पिरेशन। तो ये जो प्रोसेस है तो बहुत ही वाइटल प्रोसेस है रेस्पिरेशन, और ये रेस्पिरेशन क्या होता है इसको समझेंगे, इसके दो कैटेगरीज हम पढ़ेंगे और इसका मैकेनिज्म समझेंगे, ओके। वेरी सिंपल सोबर प्रोसेस बट क्रूशल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेस्पिरेशन का एक्चुअल मीनिंग है यहाँ पे हमें जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको ब्रेक करना है इनटू सिंपल सॉल्यूबल यूज़फुल फॉर्म, ठीक है ना। ऐसा हमें ब्रेक डाउन करना है जिससे हमें मिले यूज़फुल एनर्जी, जिस एनर्जी को हम यूज़ कर सके, ठीक है ना। तो जो भी हम खाते हैं फूड मटेरियल उसमें कार्बोहाइड्रेट तो रहता ही ऑफ कोर्स। तो ये जो प्रोसेस है ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन की हेल्प से होता है ऑफ कोर्स इन सेल साइटोप्लाज्म विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और हमें मिल जाते हैं ATP या एनर्जी, ठीक। ये प्रोसेस कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन में ब्रेकडाउन ऑफ या एसिमिलेशन होता है एक तरह का उस कॉम्प्लेक्स फूड का इनटू सिंपल फॉर्म विद रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। तो ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है इसको आप दो हिस्सों में ऐसे डिवाइड कर लो, राइट, लाइक दिस, ठीक है ना। रेस्पिरेशन का मतलब है सिंपली एनर्जी ऑब्टेन करना फ्रॉम फूड मटेरियल विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और मे बी विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। तो इस रेस्पिरेशन को हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक इंटरनल रेस्पिरेशन, राइट। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, या फिर आप इसको समझ सकते हो कि ये जो रेस्पिरेशन है एक्चुअली इट इज़ द गैसेस एक्सचेंज इन इटसेल्फ। यहाँ पे आप देखिए ये ब्रीदिंग है, इसको आप क्या कह सकते हो, ब्रीदिंग। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ये दोनों को मिलके बनता है ब्रीदिंग। Breathe in, breathe out, external respiration. What happens right here in this case? We inhale, breathe in, inhalation, ठीक है ना, inspiration, inhalation, inspiration, process of taking oxygen rich air into the lungs, इसका नाम हो गया breathe in। और अब उसके बाद होता है breathe out, exhalation, ठीक है ना, inhalation, exhalation, breathe in, breathe out, और हमारा breathing rate कितना होता है पर मिनट, अबाउट 16-18 तक हो सकता है ब्रीथ्स पर मिनट, 72
ये हमारा हार्ट रेट होता है. बी केयरफुल. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट रेस्पिरेटरी रेट, नॉट अबाउट कार्डियक रेट और हार्ट रेट. ठीक है, तो ये जो ब्रीद इन ब्रीद आउट है ये लंग्स की हेल्प से होगा, उसमें कुछ एसेसरी ऑर्गन्स हेल्प करेंगे, नॉस्ट्रल्स, माउथ वगैरह, लेकिन यहाँ एनर्जी प्रोड्यूस होगा. दैट्स हाउ इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. इट इज़ इंट्रासेलुलर एंड इट इज़ द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड मटीरियल जैसे कि ग्लूकोज इज़ ब्रोकन डाउन टू सिंपल फॉर्म विद रिलीज ऑफ एनर्जी. बट इसमें हम ऑक्सीजन का हेल्प लेते हैं, इसलिए ये कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन. इफ देर इज़ नो नीड ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन डू नॉट इन्वॉल्व, देन it is said to be an aerobic respiration as occur in some microbes, okay, in prokaryotes or in eukaryotes like yeast, Saccharomyces cerevisiae. ठीक है ना, ये आपने समझ लेना है कि रेस्पिरेशन एक्सटर्नल होता है और इंटरनल होता है. ये लंग्स की हेल्प से होता है. गॅसियस एक्सचेंज आहे, बाकी यामध्ये काहीच नाही. ठीक आहे ना. ऑक्सिजन रिच एअर आतमध्ये घ्यायची आहे आणि CO2 रिच एअर बॉडीच्या बाहेर रिलीज करायची आहे. ओके, दॅट इज नथिंग बट ब्रीदिंग. ब्रीद इन ब्रीद आउट. But here it is very crucial and important and we have to understand this particular concept. Okay, तो हमारा जो टारगेट है वो समझ लेना है क्या, रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट. उससे पहले फिर से कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसके आंसर समझ लेते हैं. आपको पूछा गया है ये जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें पार्टिसिपेट करती है. राइट, ग्लूकोज को बनाने में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब का यूनिक रोल होता है. यहाँ पे कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6. राइट, ये सारे एलिमेंट्स, ये कंपोजिशन इसमें पार्टिसिपेट होता है, ऐसा आप समझ लो. और ये बन गया ग्लूकोज से 6H12O6. ये आपको पूछा गया है कितने मॉलिक्यूल्स इसके यूज़ होते हैं टू कंस्ट्रक्ट अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. बट इसमें आपको और एक क्वेश्चन किया गया है कि इसमें कौन से बॉन्ड्स होते हैं, क्रॉस बॉन्डिंग. राइट, तो इसमें सारे बॉन्ड्स कोवैलेंट टाइप के होते हैं. कौन से बॉन्ड्स मिलेंगे इसमें आपको, कोवैलेंट बॉन्ड्स. राइट, तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दीज आर अटैच्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग. ठीक है, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है इन दिस प्रोपोर्शन, और इसमें है कोवैलेंट बॉन्ड्स. और एक फाइनल क्वेश्चन आपको किया गया है कि ये ऑक्सीडेशन क्या होता है. ओके, ऑक्सीडेशन विद रेफरेंस टू ऑक्सीजन, विद रेफरेंस टू हाइड्रोजन, ऐसा आप इजीली डिफाइन कर सकते हो. ओके, तो ऑक्सीडेशन का सिंपल मीनिंग अगर आपको बताना है तो आप बता सकते हो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है ना, ये क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. या फिर आपको अगर ऑक्सीडेशन बताना है तो आप दूसरे रेफरेंस में भी डिफाइन कर सकते हो. ठीक है, विद रेफरेंस टू इलेक्ट्रॉन, विद रेफरेंस टू हाइड्रोजन एज वेल. राइट, जैसे हाइड्रोजन अगर ऐड होता है तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं, तो उसी तरह हाइड्रोजन अगर रिमूव होता है, ठीक है, तो उसको आप ऑक्सीडेशन कह सकते हो. राइट, मतलब हाइड्रोजन अगर रिमूव होता है तो वो ऑक्सीडेशन, या फिर ऑक्सीजन अगर ऐड होता है तो इससे बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाए जाएंगे. ओके, तो अगर हमें ऑक्साइड्स बनाने हैं तो हम उसमें ऐड करेंगे ऑक्सीजन. एग्जाम्पल, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स हो सकते हैं. ठीक है, तो ये सारे एडिशन ऑफ क्या होता है, ऑक्सीजन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन. उसी तरह रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब फिर से ऑक्सीडेशन. गॉट इट. अगर हाइड्रोजन ऐड होता है तो रिडक्शन. लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल हियर. जैसे कि ये कोएंजाइम हमारे पास है NAD, आगे इसको पढ़ेंगे, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड. इफ़ अगर आप इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर देते हो तो ये इस तरह हो जाएगा NADH2. ठीक है ना, तो ये रिड्यूस कोएंजाइम NADH2. सो हियर इट इज़ व्हाट, रिडक्शन, बिकॉज हाइड्रोजन इज एडेड टू दी कोएंजाइम. ठीक है ना. उसी तरह अगर आप इसको निकाल लेते हो इस तरह, NADH2 का कन्वर्शन क्या में हो गया, NAD में हो गया, तो आपने हाइड्रोजन निकाल लिया, सो दैट टाइम इट बिकम ऑटोमेटिक ऑक्सीडेशन. ठीक है ना, तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली इधर उधर होते रहते हैं डिफरेंट बायोकेमिकल्स इंटरेक्शंस में. ओके, बट आपने ये 3 क्वेश्चन के आंसर समझ लिए. पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि ग्लूकोज में कौन कौन से इंग्रेडिएंट कितने क्वांटिटी में होते हैं. ओके, तो आपने इस फार्मूले से उसको बता दिया. राइट, फिर आपको पूछा गया था उसमें बॉन्डिंग कौन सा होता है, तो बॉन्डिंग आपने बताया कोवैलेंट बॉन्ड्स उसमें रहते हैं. फिर ऑक्सीडेशन को आपने सिंपली डिफाइन कर दिया है. अब हमारा मेन टॉपिक जो है यहाँ से
वो स्टार्ट होता है रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन जो एनर्जी ऑब्टेनिंग प्रोसेस है, ओके, वो 2 टाइप के हो सकते हैं रेस्पिरेशन। इस तरह आप 2 कैटेगरीज में उसको पहले समझ लो, राइट। ये एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। पहले हम एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद एनएरोबिक रेस्पिरेशन को समझा जाएगा, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये काम होगा, ठीक है। तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ऑलवेज। सारे हायर एनिमल्स ये एरोबिकली रेस्पायर करते हैं और प्लांट्स भी, ठीक है। और एनारोबिक, इसमें ऑक्सीजन का नीड नहीं है, नो नीड ऑफ ऑक्सीजन एट ऑल। तो ये ऑक्सीजन के बगैर भी हो सकता है, ठीक है। और ये माइक्रोब्स में होता है मोस्टली, लेकिन कुछ यूकैरियोटिक सेल्स भी ऐसा काम कर सकते हैं। और ह्यूमन बॉडी, के ह्यूमन बॉडी में ऐसा रेस्पिरेशन पॉसिबल है? यस, ओके। इफ़ यू थिंक अबाउट आर आरबीसीज मैच्योर्ड, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, ठीक है ना, मैच्योर्ड आरबीसी, तो उसमें क्या होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन। उस आरबीसी में न्यूक्लियस भी नहीं होता है, सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया तो बिल्कुल नहीं रहते। तो उस केस में वो कैसे सर्वाइव करेगा? अबाउट 120 डेज, ठीक है ना। तो आपने देखा कि उसमें कौन सा रेस्पिरेशन होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन, यू शुड रिमेंबर, ओके। उसी तरह आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो, जैसे कि ईस्ट वगैरह, और हमारे मसल्स भी एनारोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं। आर मसल्स एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज, एट द टाइम ऑफ हेवी वर्क, एट द टाइम ऑफ टिपिकल हेवी एक्सर्शन, जो भी हम करते हैं सब कुछ, तो उस केस में हमारे मसल्स एनारोबिक मोड में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। जर ऑक्सीजन आहे तर एरोबिक रेस्पिरेशन, जर ऑक्सीजन नहीं आहे एनारोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन विच ऑकर्स in presence of oxygen aerobic, in absence of oxygen anaerobic, okay। तो अभी हमें पढ़ना है extraordinary super process of aerobic respiration। कौन सा पढ़ेंगे? aerobic respiration। तो ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस है, इसको पहले तो डिफाइन हमने ऑलरेडी कर लिया है कि जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है वही होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये अगर सेल के अंदर हो रहा है तो वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत पड़ेगा। मतलब सेल कैसा होना चाहिए? यूकैरियोटिक होना चाहिए, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया उसमें होने चाहिए ऑफ कोर्स। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में नीड ऑक्सीजन का होता है और सबस्ट्रेट हमें चाहिए, मतलब ग्लूकोज। इसके लिए क्या चाहिए? ग्लूकोज। और बहुत सारे एंजाइम्स और बहुत सारे कोएंजाइम्स, राइट, और बहुत सारे कोफैक्टर्स ये हमें चाहिए। कोफैक्टर्स सिंपली मीन्स मिनरल्स, ठीक है ना, ये हमें चाहिए। तो मिनरल्स वगैरह, एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, ये सब का नीड होता है यहाँ। बट बेसिकली हमें 2 चीज़ें चाहिए, दैट इज़ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो ये रेस्पिरेशन होता कैसे हैं, इसको स्टेप वाइज थोड़ा समझ लेते हैं। इट इंक्लूड फॉलोइंग स्टेप्स। एरोबिक रेस्पिरेशन कंसिस्ट ऑफ व्हाट? तो सबसे पहला जो स्टेप इसमें होता है वो है ग्लाइकोलाइसिस। सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है? ग्लाइकोलाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। इसको हम समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद यहाँ एक सिंपल रिएक्शन होता है जिसका नाम है लिंक रिएक्शन। उसको भी सीक्वेंस में लिख लेते हैं, बट वो आपको टेक्स्ट बुक में इसी में इन्वॉल्व करके दिखाना है, ओके। हम उसको सेपरेटली लिख देते हैं यहाँ पे आपके लिए, लिंक रिएक्शन, ओके। एक बार लिंक रिएक्शन हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा एसिटिल कोएंजाइम ए, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट होगा एक खास प्रोसेस जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल, बहुत ही पावरफुल साइकिल, ठीक है। इसको हम समझ लेते हैं आगे। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन, ये होगा सबसे लास्ट में। और इसके बाद हमें मिल जाएंगे बहुत सारे ATPs, ठीक है ना। ATPs जनरेट होने लग जाएंगे और वही होता है एनर्जी करेंसी, ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ओके, जिससे हमारे सारे काम होते हैं। तो हमारा टारगेट है इन सब चीज़ों को अच्छी तरह समझ लेना, ठीक है ना। तो हम शिफ्ट होते हैं सबसे पहले ऑन ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, दिस प्रोसेस इज कॉमन, ओके। देखिए, याद रखिए, जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो ग्लाइकोलाइसिस पहले होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो भी ग्लाइकोलाइसिस पहले होगा। दैट इज, इट इज़ कॉमन इन बोथ
ये दोनों में होता है। इसका मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है। ओके, सो ग्लाइकोलाइसिस इज साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस एंड साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज इन यूकैरियोटिक सेल। हर जगह है साइटोप्लाज्म, हर सेल में है साइटोप्लाज्म। विदाउट साइटोप्लाज्म सेल कैन नॉट सर्वाइव, ठीक है ना। तो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस, इसीलिए ये दोनों में कॉमनली होता है, सेम ही होता है। ओके, तो ग्लाइकोलाइसिस को पहले डिफाइन कर लेते हैं। पहला स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन का पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस, और इसका डेफिनेशन क्या है? यहाँ पे ग्लूकोज को आपको ब्रेक करना होता है इनटू व्हाट? ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन, ठीक है ना, इनटू व्हाट? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, मतलब पायरुवेट, ठीक है ना। पायरुवेट भी कह सकते हो या फिर पायरुविक एसिड भी कह सकते हो। ये इसको इस तरह लिखा जा सकता है, ठीक है, ये है पायरुविक एसिड। तो यहाँ पे ये 3 कार्बन कंपाउंड आपको मिलता है। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन्स आर देयर विच इज ब्रोकन डाउन टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। तो आपको यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। 6 कार्बन कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन। इसमें 3 कार्बन है, तो ये प्रोसेस कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। इन एडिशन वी गेट समथिंग एल्स। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ATP भी मिल जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2, ये देखिए, ये रेड्यूस कोएंजाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, इससे आपको आगे जाके ATP मिलते हैं आफ्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो ये 2 NADH2 आपको मिल गए, 2 ATP आपको यहाँ पे मिल गए, साथ में ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड यहाँ पे मिल गया। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें, और ये है ग्लाइकोलाइसिस, राइट। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो इसका जो टोटल प्रोसेस है स्टेप वाइज अबाउट 10 स्टेप्स इसमें होते हैं। कितने? 10 स्टेप्स, राइट। तो सारे स्टेप्स हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे, बट वो एग्ज़ाम में पूरे लिखना ज़रूरी नहीं है। सिंपली आपको हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये पायरुवेट कैसे बना, ये ATP कहाँ पे जनरेट हुआ, और ये कोएंजाइम कैसे रिड्यूस फॉर्म में पहुंचा, ठीक है ना। ये हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्लीट ग्लाइकोलाइसिस। बट एट द सेम टाइम यू शुड अंडरस्टैंड और रिमेंबर अबाउट 3 डिफरेंट साइंटिस्ट, जैसे कि एमजेन, देखिए एमजेन, मेयरहॉफ, एंड फॉरेनर्स। ये 3 साइंटिस्ट है डिफरेंट, एमजेन, मेयरहॉफ एंड फॉरेनर्स, ठीक। इन तीनों डिफरेंट साइंटिस्ट ने ये सारा प्रोसेसिंग स्टडी किया कि कैसे 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल मिलते हैं फ्रॉम सिंगल ग्लूकोज, और इसीलिए इस पाथवे को और एक दूसरा नाम भी दिया गया है, दैट इज EMP pathway, ठीक है ना। EMP pathway means what? Glycolysis, because it was studied by MJN, Meyerhoff and foreigners, ठीक है, समझ गए चीज़। तो आगे चलिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस कैसे होता है, इस चीज़ को हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ इट्स सबसीक्वेंट स्टेजेस, ठीक है ना। तो इसमें 2 स्टेप होते हैं एक्चुअली। एक पहला स्टेप जो होता है उसका नाम है प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज मतलब वो प्रिपेयर होगा, ठीक है ना। उसके बाद पे ऑफ, उसके बाद सारा इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। प्रिपरेशन में थोड़ा खर्च आता है, देखेंगे कैसे, और पे ऑफ में कैसे इनकम मिलता है इसको भी समझेंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है, ये सारी चीज़ों को समझना है, ठीक। यहाँ पे हम ले लेते हैं ग्लूकोज। सो ग्लूकोज इज 6 कार्बन कंपाउंड, ऑफ कोर्स वी नो दैट, एंड दैट ग्लूकोज इज टू बी ब्रोकन डाउन राइट नाउ। ओके, ग्लूकोज को अगर ब्रेक करना है तो सबसे पहले उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। एक्टिवेशन के बाद उसमें देखिए, एक्टिवेशन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एक्टिवेशन के लिए आपके पास एनर्जी होनी चाहिए, ATP, ठीक है ना। ATP का यूज़ यहाँ करना होगा, और यहाँ से एक फॉस्फेट आपको निकाल लेना पड़ेगा, ADP। ATP इज ब्रोकन डाउन टू ADP बाय हाइड्रोलाइसिस, और आपको एक यहाँ पे फॉस्फेट का मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड करना है। ये ग्लूकोज आपके पास ऑलरेडी है, इस तरह अगर आपके पास ग्लूकोज है, यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये ग्लूकोज है। तो यहाँ पे आपको अगर फॉस्फेट ऐड करना है 1 2 3 4 5 6, तो अगर फॉस्फेट ऐड करना है तो लास्ट कार्बन पे अटैच होगा, ये देखिए फॉस्फेट, तो इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ओके,
तो यहाँ पे ग्लूकोज से हमें मिल जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है ना। ग्लूकोज से क्या मिला, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, क्योंकि इसमें फॉस्फेट ऐड किया ना यहाँ, तो ये थोड़ा एनर्जाइज हो गया, क्योंकि फॉस्फेट मतलब एनर्जी, ओके। और ये सारी चीज़ें एंजाइम्स के प्रेजेंस में होती है, जैसे कि यहाँ एंजाइम भी काम करता है हेक्सोकाइनेज, आपको उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। हेक्सोकाइनेज, जहाँ एटीपी होता है वहाँ काइनेज एंजाइम काम करेगा, ओके। तो ये ग्लूकोज का कन्वर्शन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कर दिया आपने। अब इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को आपको आइसोमराइज कराना है इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो ये भी चीज़ आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि यहाँ पे ग्लूकोज का आइसोमर कौन होता है, फ्रुक्टोज। सो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू फ्रुक्टोज, नो नीड ऑफ एटीपी, एटीपी ऐड नहीं करना है, रिमूव नहीं करना है, आपने सिर्फ इसको आइसोमराइज करना है इन प्रेजेंस ऑफ आइसोमरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, आइसोमरेज, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, यहाँ पे आप देख सकते हो आइसोमरेज, एंजाइम लिखने का जरूरत नहीं है, सिंपली याद रखिए। नाउ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इज अगेन एनर्जाइज विद द हेल्प ऑफ एटीपी। दूसरा एटीपी खर्च करना पड़ेगा आपको, ठीक है, एक्सपेंडिचर इज हियर। एंड नाउ एटीपी ब्रोकन डाउन टू एडीपी एंड वन ऑफ द फॉस्फेट इज एडेड हियर टू फ्रुक्टोज। पहले से यहाँ फॉस्फेट है, अब आपको और एक फॉस्फेट ऐड करना है, तो कौन से कार्बन पे ऐड होगा, फर्स्ट कार्बन पे ऐड होगा, ठीक है, यहाँ पे फॉस्फेट। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम इस तरह हो जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, ठीक है ना, 1,6 डाइफॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, ऐसा इसका नाम हो जाएगा, ओके, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। और ये चीज़ आपको मिल गई है एनर्जाइज प्रोडक्ट। अब इसको आपको क्लीव करना पड़ेगा, ओके, इट शुड अंडरगोस क्लीवेज। इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा ऐसे, राइट, इस तरह इसको ब्रेक करेंगे। और ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है, ओके, इस 6 कार्बन कंपाउंड को हम ब्रेक कर देंगे इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन ईच। तो इसका जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है, क्लीवेज प्रोडक्ट, उसका नाम है, देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल जिसका नाम है फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, ठीक है ना, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। इसमें 3 कार्बन होते हैं और दूसरा होता है DHAP, ठीक है ना। इसको थोड़ा उस साइड में लिख लेते हैं, राइट, यहाँ पर, या फिर ये पूरा हमें थोड़ा रब करना है सो दैट यू कैन ऑब्जर्व, नीचे चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है ना। फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड प्लस यहाँ पे और एक मॉलिक्यूल मिलेगा, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं हम ऐसे, ओके, सो दैट यू कैन सी हियर, यहाँ पे DHAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, 3 कार्बन 3 कार्बन। ये जो क्लीवेज होता है एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा DHAP PGAL, ये इस तरह का है, अगर आप देख नहीं पा रहे हो तो यहाँ लिख देते हैं DHAP प्लस PGAL। ये दो हमें 3 कार्बन कंपाउंड मिलते हैं फ्रॉम 1 6 कार्बन कंपाउंड, DHAP PGAL, ठीक है। दोनों को आपने अगर मिला दिया तो आपको फिर से ये मिल जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। अभी तो हमने इसको ब्रेक किया ना, तो हमारे पास DHAP है और PGAL है। अब इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐसा है कि यहाँ पे ये एक दूसरे के आइसोमर है, ओके। तो आइसोमेरिज्म फिर से यहाँ होगा इस तरह, ये जो DHAP है ये आइसोमराइज हो जाएगा टू PGAL, ठीक है। DHAP 3 कार्बन का है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, तो यहाँ पे ये उसमें आइसोमराइज हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, एज अ रिजल्ट आपको मिल जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGAL, ठीक है ना। दिस टाइम वी हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, ठीक है ना, 2 मॉलिक्यूल्स वी ऑब्टेन राइट हियर। अब ये आपके पास है 2 मॉलिक्यूल्स। अब इसका क्या होता है ये हम समझ लेते हैं, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होगा, और इसका कन्वर्शन, ठीक है, देखिए क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक, और ये एल्डिहाइड का कन्वर्शन एसिड में हो जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा इस तरह का प्रोडक्ट 1,3 डाई PGA, ठीक है, 3 कार्बन कंपाउंड होता है, इससे आपको मिलेगा 1,3 डाई PGA, बट इसके मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स। इससे आपने हाइड्रोजन निकाल लिया है, ओके। यहाँ पे आपने देखा कि ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या है, ठीक है, समझ रहे हो ना, हाइड्रोजन का रिमूवल। तो हाइड्रोजन अगर रिमूव होगा तो उसको कोई तो रिसीव करेगा,
और वो रिसीव करने के लिए यहाँ पे होता है कोएंजाइम, ठीक है, जिसका नाम है NAD, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, जो रिड्यूस हो जाता है। 2 मॉलिक्यूल्स है तो 2 ले लेते हैं हम यहाँ पे, और ये रिड्यूस प्रोडक्ट आप देख सकते हो NADH2, ठीक है ना। तो हमने कहा था शुरुआत में NADH2 भी मिलते हैं, तो यहाँ पे मिलते हैं, ओके। और ये प्रोडक्ट हमें मिल गया 1,3-डाईपीजीए, फिर इसका कन्वर्शन हो जाता है 3PGA में, राइट, ऑफ कोर्स 2 मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब आपने यहाँ से फॉस्फेट निकाल लिया है, ओके। 2 मॉलिक्यूल्स में से आप फॉस्फेट निकालोगे तो फिर 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स ये रिमूव होंगे, यहाँ से रिलीज होंगे। उसको कौन रिसीव करेगा? तो उसको ATP बनाने के लिए ADP रिसीव करेगा, राइट, लाइक दिस 2 ADP plus 2 IP we get 2 molecules of ATP। तो इससे पहले जो हमने लिखा था ये एरो अपोजिट था, ठीक है ना, वहाँ पे ATP यूज़ होता था, ADP बनाया जाता था, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, हियर वी आर गेटिंग द एनर्जी, आपको यहाँ पे एनर्जी मिलता है, पे ऑफ फेज है, ठीक है ना। और आपके पास हो जाते हैं 2 ATP मॉलिक्यूल्स, जो 2 ATP आपने खर्च किए थे ना पहले, तो यहाँ पे आपको मिल भी गए, देखिए, ठीक है, 2 ATPs यू रिसीव राइट हियर। तो यहाँ पे 1,3-डाईपीजीए का कन्वर्शन किस में होता है? 3PGA में होता है, और फिर 3PGA का कन्वर्शन ये पोजीशन आइसोमेरिज्म से 2PGA में हो जाता है, ठीक है। आप बस देखते रहिए, क्योंकि वैसे भी एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए हमने बताया, ओके। 3PGA का कन्वर्शन क्या में होगा? 2PGA, राइट, लाइक दिस 3PGA 2PGA, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फॉस्फेट को शिफ्ट करो 3rd कार्बन से 2nd कार्बन पे, ठीक है ना। 3PGA का मतलब है कि यहाँ पे इस तरह के 3 कार्बन से, तो ये जो फॉस्फेट है 3rd कार्बन पे है, 1st, 2nd, 3rd कार्बन पे फॉस्फेट रहने का मतलब है 3PGA, लेकिन अब इसका नाम है 2PGA, इसका मतलब फॉस्फेट कहाँ पे है? 2nd कार्बन पे है, ओके। ऐसा इसका मीनिंग है, जबकि ये हमें 2 मॉलिक्यूल्स में मिले हैं, बिकॉज टोटल कार्बन्स आर 6, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ठीक है, 2PGA। अब इस 2PGA का हम क्या करेंगे? 2PGA का हम बनाएंगे फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, ठीक है ना। क्या बनेगा? फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, फिर से 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। और जब ये मिल जाता है फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, तो इसके बाद रहता है यहाँ पे एक लास्ट स्टेप, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये देख लो, समझ लो, ठीक है, कि कैसे इससे फॉस्फेट आप निकाल सकते हो। और फॉस्फेट आपने निकाला, ठीक है ना, इसको निकालते हैं, 1 मिनट, ठीक है ना, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, ये फॉस्फेट ध्यान से निकाल लो, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 फॉस्फेट निकालो, और जब 2 फॉस्फेट निकालोगे तो क्या होगा? 2 ADP plus 2 IP, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट 2 ATP। देखिए 2 ATP हमें एक्स्ट्रा मिल गए, टोटल 4 ATP हमारे पास हो चुके हैं, लेकिन 2 ATP खर्च भी तो हो गए शुरुआत में, पहले 2 स्टेप्स में, ठीक है, टोटल 3 स्टेप्स में, तो 4 ATP टोटल मिलते हैं, लेकिन 2 ATP यहाँ यूज़ भी होते हैं। दैट्स हाउ टोटल नेट गेन जो होगा ओनली 2 ATP का रहेगा, इसलिए इक्वेशन में हमने 2 ATP लिखा था, ओके। तो आपने देखा कि ये फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से फॉस्फेट निकल जाते हैं और मिल जाता है पायरुविक एसिड, पायरुवेट इसको आप कह सकते हो, ठीक है ना। इसी को क्या कहना है? पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड। फिर से क्या? 2 मॉलिक्यूल्स इस तरह, और ये रहा प्रोडक्ट। तो कौन कौन सी चीज़ें आपको मिली है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस में, ये सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस है, ये EMP पाथवे है, ओके, इसमें बाकी कुछ नहीं है अभी, ये सिंपली ग्लाइकोलाइसिस है। ये बैक्टीरिया में भी होता है, ये प्लांट एनिमल सब में होता है, ओके। और आपको मिल जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। अगर आपको इतना सब कुछ याद नहीं रखना है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिंपली इतना समझ लेना है कि जो हमारे पास ग्लूकोज था, उस ग्लूकोज में 6 कार्बन्स होते हैं, ठीक है, और वो 6 कार्बन कंपाउंड हमको ब्रेक करना होता है इनटू व्हाट? 3 कार्बन कंपाउंड, बट कितने? 2 मॉलिक्यूल्स, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है पायरुविक एसिड। बट साथ में हमें क्या मिलता है? 2 ATP, ओके। और क्या मिलता है? इससे पहले यहाँ पर हमने आपको दिखाया है 2 NADH2। तो ये सारे प्रोडक्ट्स भी हमें मिल जाते हैं अलॉन्ग विद पायरुविक एसिड। सो व्हेनेवर ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन
into 2 molecules of pyruvic acid. यही तो है ग्लाइकोलाइसिस. ओके, ये ग्लाइकोलाइसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एक चीज़ हमें आपको और बतानी है, ठीक है ना, ये आपने समझ लेना है कि एक बार जब ग्लाइकोलाइसिस हो जाता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन में और एक काम होता है जो एनाएरोबिक में नहीं होता है, ठीक है ना. ये चीज़ आप यहाँ देख लो. ये हमें मिल गया है पायरुविक एसिड, ठीक है. पायरुविक एसिड जो हमें मिला है 2 मॉलिक्यूल्स में मिला है बाय ग्लाइकोलाइसिस. अब ये आउटर चेम्बर में जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के. ये जो माइटोकॉन्ड्रिया आपने देखा है ऐसा, ठीक है, इसमें मान लो ये जो बाहर का हमने बना दिया है ये है आउटर चेम्बर. तो पायरुविक एसिड को यहाँ एंट्री मिलती है और यहाँ इस पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन ये कैसे होगा इसको हम देखेंगे, ठीक है. उसके बाद क्या मिलेगा इसको हम देखेंगे. सारी चीज़ें यहाँ होगी. इसका नाम है लिंक रिएक्शन. ओके, लिंक रिएक्शन, क्योंकि इसके बाहर क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस, इसके अंदर क्या होता है क्रेब्स साइकिल. यहाँ पे क्रेब्स साइकिल होगा इनर चेम्बर के अंदर. तो ये ग्लाइकोलाइसिस, ये क्रेब्स साइकिल, इसके बीच में क्या होता है यहाँ पे होता है ये जो हम पढ़ रहे हैं लिंक रिएक्शन. इट कनेक्ट दीज 2 स्टेप्स, दैट इज हाउ कॉल्ड लिंक रिएक्शन. तो इस लिंक रिएक्शन को समझो, ठीक है, कैसे होता है ये लिंक रिएक्शन यहाँ आपको दिखा रहे हैं, राइट. तो इसमें से आपको क्या क्या निकाल लेना है इसको समझो. इसमें से आपको कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेना है, ठीक है ना. सपोज ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल गया. ओके, तो क्या बचा CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड बचेगा, ठीक है ना. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकालो और साथ में इसका ऑक्सीडेशन ऐसे करना है. यहाँ पर N देखिए, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन निकाल के किसी चीज़ में ऐड करना है. तो वो हाइड्रोजन का रिसीवर कौन होता है NAD. ये कोएंजाइम है और ये कोएंजाइम हाइड्रोजन लेके रिड्यूस हो जाएगा इनटू NADH2. तो ये हो चुका है एक टाइप का एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब रिडक्शन. इसका तो रिडक्शन हो गया लेकिन इसका ऑक्सीडेशन हो गया. क्या हो गया ऑक्सीडेशन. तो ये भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है. मतलब इसमें आपने हाइड्रोजन भी निकाला है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकाल लिया है और जो बचा उसका नाम है एसिटिल फ्रैक्शन. क्या नाम है उसका, जो बचा उसका नाम है एसिटिल फ्रैक्शन. उसके अंदर आपको ऐड करना है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कोएंजाइम A, ठीक है. जब वो एसिडिल ग्रुप में आप कोएंजाइम ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A, ठीक है. क्या मिल जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A. तो इस तरह होता है लिंक रिएक्शन. ये चीज़ देखिए बहुत ही टिपिकल इंपॉर्टेंट है कि हमने आपको डायरेक्ट नहीं बताया कि एसिटिल कोएंजाइम बन जाता है, हमने आपको बताया कैसे बनता है, राइट. तो ये है लिंक रिएक्शन. ये है, आप देख सकते हो कि ये यहाँ तो रिडक्शन हो रहा है लेकिन इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन निकल गया है, रिमूवल, ऑक्सीडेशन. सो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. तो CO2 जो हम बाहर करते हो ये भी CO2 वही तो होता है ना, ठीक है ना, क्योंकि ये रेस्पिरेशन में निकल रहा है ऑफ कोर्स. तो ये लिंक रिएक्शन है. और अब आपके पास प्रोडक्ट है एसिटिल कोएंजाइम A, 2 मॉलिक्यूल्स. इसको आपको ले जाना होगा इनटू क्रेब्स साइकिल. फिर इसका वहाँ पे कंटिन्यूस ऑक्सीडेशन होगा, बहुत सारे रिड्यूस कोएंजाइम्स मिलेंगे. उसके बाद उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ले जाना होगा और आपको ATP मिलेंगे, राइट. तो ये जो प्रोसेस था हमने पढ़ा, एक ही प्रोसेस पढ़ा, ग्लाइकोलाइसिस, फर्स्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. उसमें हमें मिलते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड. फिर पायरुविक एसिड को हम एसिडिल कोएंजाइम A में कन्वर्ट कर देते हैं और आउटर चेम्बर में, ठीक है, किसके आउटर चेम्बर में, वो है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके आउटर चेम्बर में. उसके बाद लिंक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मिला है उसको ले जाना होता है इनटू क्रेब्स साइकिल. तो क्रेब्स साइकिल ये नेक्स्ट लेक्चर में डील किया जाएगा, ठीक है ना. लेकिन ये जो लेक्चर था पूरी तरह ग्लाइकोलाइसिस और लिंक रिएक्शन के बारे में था. तो ये चीज़ आपने रिपीटेड वॉचिंग करना है इस वीडियो को और उस चीज़ को समझ लेनी है कि कैसे मिला एसिडिल कोएंजाइम A, ठीक है ना, और उससे पहले कैसे मिला पायरुविक एसिड, ठीक है ना. ये कौन है, इसका नाम है पायरुवेट, मतलब पायरुविक एसिड. ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट है ना. उसके बाद होता है ये काम और आपको मिलता है एसिडिल कोएंजाइम A. इसके बाद क्या होगा, तो क्रेब्स साइकिल होगा, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, तब जाके एरोबिक रेस्पिरेशन एंड होगा, राइट. सो होप यू गेट सम पॉइंट्स रिगार्डिंग ग्लाइकोलाइसिस एंड लिंक रिएक्शन, ठीक है. इस वीडियो को बार बार देखिए और प्रोसेस को समझ लो, ठीक है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.